Assalamu alaikum students. It is a small and medium enterprises chapter 8 and we are entering in the marketing strategies and the marketing phenomena, how an SME or an entrepreneur market yourself with a product, and how the business thoughts work in a practical market. We were discussed last session about the marketing strategies and a product life cycle as well, which is very important when we are entering in a market and promoting our product as well. Which kind of the strategy is important, how many factors are important in that term, and as well how the prices and the packaging is important when the entrepreneur enter in the market. Customer obviously is a very important part in the market, and although all these activities concerning about the customer being facilitated by these strategies and by these facilitations. Then now we are going to start the chapter 8, promoting in the distribution. The NSME SME actually decided by their market strategies. SME introduced their product in the market. Now, the next responsibility, being an entrepreneur to the other person, is the promoting and the distribution. Promoting and distribution what? हमारे पास जो है प्रमोशन के बहुत सारे सोर्सेज मौजूद हैं, जिसको हम यहाँ पर देखेंगे। यूजेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रॉब्लम्स कौन कौन से जो है फेस हो रहे होते हैं। देन हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एज वेल एज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दोनों की बात करेंगे। फंक्शन ऑफ इंटरमीडिएट्स की बात करेंगे यहाँ पर, और क्रिएटिव सेलिंग प्रोसेस की बात करेंगे कि एक सेल्स पर्सोनल जो होता है उसकी अपीयरेंस कितना मैटर करती है। एक सेल्स पर्सोनल जो है उसके अंदर कौन-कौन सी एबिलिटीज़ जो हैं वो मौजूद होनी चाहिए। हम इन तमाम चीज़ों की बात जो है आज अपने इस सेशन में करेंगे और इसमें डिस्कस करेंगे कि हाउ टू बी हैंडल ऑल ऑफ दिस थिंग्स। नाउ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ आएँ तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में जब हम ये बात कर रहे होते हैं कि प्रोमोटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो कौन से टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो इसमें हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रॉब्लम्स की, कि एक्चुअली इन टर्म ऑफ अ प्रमोशन एक एसएमई कौन-कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो अवेल कर सकता है, जो वो नहीं कर रहा है या जो उसकी नज़रों से नहीं गुज़री हुई, और वो कौन-कौन से थ्रेट्स हैं, वो कौन-कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक्चुअली जो है वो वहाँ पर देख रहा है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं एक एसएमई जो है वो किस तरीके से हैंडल कर रहा है। तो अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रॉब्लम्स इज़ अ वन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक in this. And the other important topic is the channel of distribution. Channel of distribution is not for you guys. You have to be discussed in the previous semester as well, when you all taking a course as a business. You have to be read it, channel of distribution. Now the most important, and for you guys a very important topic for you, creative selling process, and which kind of the ability and which kind of skills is important for you being a selling process. But one more thing, keep in your mind, you are also a product. Okay, student is also a product for getting the job. Sometime the business personnel, maybe in future you will be a very successful business personnel. Then you how many qualities and how many type of things you gauge in your personality. Then we discuss this kind of things. Now let's start on the uses of advertisement. And what is advertisement? Advertising is the information about the product. आप अपने कस्टमर को क्या कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं। ये आपकी प्रोडक्ट है, और एक्नॉलेज किस तरह, ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में से आपकी नीड और आपकी जो वांट्स हैं, जो डिमांड्स हैं, वो इस तरह सेटिस्फाइड हो रही हैं। एंड हाउ टू यूज़ इट, आप अपने एडवर्टाइजमेंट में समटाइम उसको यूज़ करने का तरीका भी बता रहे होते हैं। तो इट मीन्स ऑफ दैट आप कस्टमर को एजुकेट कर रहे हो अपनी प्रोडक्ट के हवाले से। तो जब एडवर्टाइजिंग आप कर रहे हो तो इन्फॉर्म कस्टमर्स ऑफ द अवेलेबिलिटी, डिज़ायरेबिलिटी एंड यूज़ ऑफ प्रोडक्ट। ये यहाँ से मैसर है, यहाँ से अवेलेबल है, यहाँ से इस तरह आपकी जो है नीड एंड डिमांड को फुलफ़िल कर सकती है, और देन फिर आप इस प्रोडक्ट को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं।
दैट इज़ कॉल्ड द एडवर्टाइजिंग, कि आप इसको एडवर्टाइजिंग कह रहे हो। देन फिर जब आप एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भाई आपके पास जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो कितने टाइप की होती है। मोस्ट प्रोबेबली जो हम अमूमन यहाँ पर जो है सोर्सेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट को, जो टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग में हम सोर्सेज ऑफ एडवर्टाइजिंग को जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है इंक्लूड कर रहे होते हैं, बट इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग। नाउ व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग? वन इज़ द प्रोडक्ट, के आप अपने एडवर्टाइजमेंट में जो है क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो है नेस्कैफ़े की कॉफ़ी मौजूद है। नेस्कैफ़े की कॉफ़ी से जो है आपकी सुबह बहुत अच्छी हो सकती है। आप वहाँ पर ये बता रहे हैं कि चाय से ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में जो है कॉफ़ी वर्क करती है। आपने उस प्रोडक्ट के बारे में जो है वो बताया और फिर ये बताया कि वो हाउ टू बी यूज़ इट। ठीक है? वहाँ पर नेस्कैफ़े जो है वो आपको वहाँ पर देखते होंगे कि हॉट मिल्क रखा हुआ है और उसमें जो है ना उसको जस्ट मिक्स किया और देन फिर इट इज़ रेडी। आपने वहाँ पर क्या बताया कि हम अपनी प्रोडक्ट इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस टाइप की जितनी भी जो है आप कर रहे हैं प्रमोशन, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग, कि आप अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। कुछ जगहों पर कुछ एडवर्टाइजमेंट्स जो होती है वो आपकी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होती है, जैसे कि पीआईए जो है वो क्या करे कि अपनी जो है एडवर्टाइजमेंट जो है करे फ्लाई विद अस। ठीक है, फ्लाई विद अस की जो है एडवर्टाइजमेंट पीआईए और वहाँ पर वो बताया कि हमारे पास जो है बीइंग अ इंस्टीट्यूशन ये फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो वो वहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट कहलाएगी वो क्या कहलाएगी आपके पास, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एडवर्टाइजमेंट कहलाएगी। राइट नाउ आजकल आप लोग किस तरह की इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बेस पर अगर हम बात करें तो आप लोग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो है वो आप लोग जो है एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, जैसे कि कस्ट यूनिवर्सिटी का एडवर्टाइजमेंट आपको आपकी नज़रों से गुजरा होगा, स्टैप का गुजरा होगा आपके आपकी नज़रों से जो है वो एडवर्टाइजमेंट गुजरी होगी कि स्टेप जो है वो क्या कर रहा है, आपको एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करवा रहा है। अगर वो अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट कर रहा है तो इट इज़ कॉल्ड द इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजमेंट। ओके, तो हमारे पास टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग जो है वो टू टाइप की होती है, वन इज़ द प्रोडक्ट एंड अनदर वन इज़ द इंस्टीट्यूशनल। देन अगर आप सोर्सेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो इन इट मीन्स ऑफ दैट जब हम सोर्सेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं तो वो आप लोगों को मालूम है कि वो बीइंग वाई इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर सकते हैं आप उसको, और वाई आप जो है उसको नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस काइंड ऑफ मैगजीन, न्यूज़पेपर, पम्फलेट्स, बिलबोर्ड, दैट इज कॉल्ड द नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज। एनीवेज, अब आ जाते हैं हम डेवलपिंग एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम्स, कि आप अपने एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम्स जो है बनाने के लिए जा रहे हो। एसएमई का प्रॉब्लम, उसको अपना फाइनेंस बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल होके इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, तो आप बजट देखोगे, विच वन सोर्स इज़ बेस्ट फॉर यू, कौन सा बेस्ट मीडिया जो है वो आपके पास जो है आपके लिए सुटेबल है। तो आपने अपना बजट सेटल डाउन किया एंड देन फिर आपने अपने मीडिया को चूज़ किया कि कौन से मीडिया की तरफ जा रहे हैं। आप एडवर्टाइज़मेंट के मीडिया की तरफ जाएँगे, अ, और अगर आप जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ जा रहे हैं, तो क्या आप टीवी कमर्शियल्स की तरफ जा रहे हैं? और अगर आप टीवी कमर्शियल की तरफ जा रहे हैं, तो आप कौन-सा टाइम उनका बाय कर रहे हैं? इट मे बी अ प्राइम टाइम, आप जो है 8 टू 9 का टाइम आप बाय कर रहे हो, 9 टू 10 का टाइम बाय कर रहे हो, मॉर्निंग टाइम, इट्स डिपेंड अपॉन योर प्रोडक्ट कि आप अपना मीडिया जो है वो कौन-सा चूज़ कर रहे हो और उस मीडिया को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। व्हाट एंड हाउ टू से इट, आपने क्या कहना है? आपने अपनी प्रोडक्ट को किस तरीके से जो है जिस जो भी सोर्स आपने या जो भी मीडिया आपने सेलेक्ट किया है, उस मीडिया में आपने किस तरह से अपने प्रोडक्ट को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है। व्हाट एंड हाउ टू से इट, किस तरीके से क्या करवाना है और किस तरह करवाना है, इट्स अप टू द एसएमई थॉट्स कि वो अपनी प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट में इनिशिएट करना चाह रहा है। तो ये चीज़ जो है वो क्या कहलाएगी आपके पास, व्हाट एंड हाउ टू से इट। देन क्या आप एजेंसी के थ्रू काम करवाना चाह रहे हैं, मतलब अपना जो एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम है आप उसको आउटसोर्स करते हैं। ओके, जब आप उसको आउटसोर्स कर रहे हो, आप खुद चीज़ें नहीं देख रहे हो और आप आउटसोर्स कर रहे हो, और आउटसोर्स करना इट्स अ कॉमन थिंग फॉर द एडवर्टाइजमेंट। मोस्ट प्रोबेबली जो आपके एसएमईज होते हैं वो एसएमईज जो हैं वो एक्चुअली काम ही इसके ऊपर कर रहे होते हैं, काम अपने अपने आप को जो है वो इस चीज़ के
ऊपर नहीं रख रहे होते कि ये मार्केटिंग उन्होंने खुद करनी है या एडवर्टाइजमेंट उन्होंने खुद करनी है, वो एक्चुअली क्या करते हैं उसको आउटसोर्स कर देते हैं। तो एजेंसीज़ के थ्रू आपने अगर काम करवाना है तो कौन-सी एजेंसी बेस्ट है? क्या वो आपके बजट में आ रही है या नहीं आ रही? और जो मीडिया आपने सेलेक्ट किया है, क्या वो इस मीडिया को फैसिलिटेट कर रहा है या नहीं कर रहा? ये तमाम की तमाम चीज़ें आप क्या कर रहे हो? वहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं। देन इस एडवर्टाइजमेंट से आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या मिल रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हर चीज़ जो है, हर प्लान जो है वो फाइनली जो है अपने आउटपुट के ऊपर बेस्ड कर रहा होता है। आप अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रहे होते हैं, अपने रिजल्ट्स को जो है वो अपने रिजल्ट्स और अपने आउटपुट को जो है इफेक्टिवली जो है हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो देन फिर आप अपने जो है ना स्टैंडर्ड्स मेंटेन करोगे, अपना एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देखोगे कि इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है आप कितना फ़ायदा हासिल कर चुके हो, अपनी कितनी मार्केट को जो है वो इंगेज कर चुके हो अपनी प्रोडक्ट के साथ। कितने कस्टमर्स ऐसे हैं जो आपकी प्रोडक्ट पहले इस्तेमाल करते थे और अब उनमें कितना इज़ाफ़ा हुआ है, ये आप थ्रू द अपने एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स जो हैं वो वहाँ पर देख रहे होंगे। देन फिर आप वहाँ पर एक चीज़ और जो है फ़ोकस करेंगे कि ये जो आपकी एडवर्टाइज़मेंट है इससे आपके प्रॉफ़िट में कितना परसेंट इज़ाफ़ा हुआ है, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि ठीक है आपकी सेल इंक्रीज़ हो गई है, आपकी सेल इंक्रीज़ एडवर्टाइज़मेंट से हो गई, लेकिन आपका जो है बजट इतना ज़्यादा लग गया था आपकी एडवर्टाइज़मेंट को प्रमोट करने के लिए, और उस एक्सपेंस ने, बजट के एक्सपेंस ने आपको क्या किया है, आपके प्रॉफ़िट को जो है, प्रॉफ़िट के मार्जिन को जो है वो डिक्रीज़ कर दिया। तो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स के ऊपर भी आप क्या कर रहे होंगे वहाँ पर, बात कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड द डेवलपिंग एडवर्टाइज़िंग प्रोग्राम, कि आप अपने प्रोग्राम को डेवलप करने की तरफ जा रहे हैं। बजट, मीडिया, व्हाट एंड हाउ टू से इट, एजेंसी एंड फाइनली एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स। नेक्स्ट वन इज़ द एडवर्टाइजिंग बजट। अब हम जो है जब बजट की बात कर रहे हैं तो हम अपना बजट किस तरह सेट करते हैं, मतलब वो कौन कौन से जो है फोकस पॉइंट होते हैं, या वो कौन कौन से वे होते हैं जहाँ पर आप अपने एडवर्टाइजिंग बजट को जो है वो सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। परसेंटेज ऑफ सेल्स प्रॉफिट, क्या आप अपना बजट इतना बना रहे हैं कि हमारे पास जो सेल्स हुई है उस सेल्स का 20% हम एलोकेट करते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट को लेके। फॉर इंस्टांस किसी भी कंपनी की जो है वो आपके पास जो है सेल्स मौजूद है 5 लाख के अराउंड, और वो कहें कि हम इस 5 लाख में से तकरीबन अपना 20% जो है वो सेल वहाँ पर एलोकेट करेंगे, तो 20% सेल्स जो है आप वहाँ पर उसका बजट जो है वो एलोकेट कर सकते हो, वॉट एवर इज इन द सेल्स एंड वॉट एवर इन द प्रॉफिट अमाउंट। इन दोनों अमाउंट में आप क्या करोगे, अगर आप अपने सेल्स का अमाउंट एलोकेट कर रहे हो दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज ऑफ सेल्स, लेकिन अगर आप अपने फाइनल प्रॉफिट का अमाउंट जो है एलोकेट कर रहे हो दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। नाउ यूनिट ऑफ सेल की बात करते हैं। यूनिट ऑफ मतलब अपना बजट आप बना रहे हैं कि हमारे पास अगर 10 यूनिट सेल आउट हो गए तो हम उस 10 यूनिट के जो 10 यूनिट में जो है हम 2 यूनिट्स का बजट जो है वो अपनी एडवर्टाइजिंग बजट के साथ जो है वो सेट कर देंगे। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, यूनिट ऑफ सेल्स कहला रहा होगा। ऑब्जेक्टिव इमीडिएट रिस्पॉन्स, या फिर जो है आपको क्या चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि आपके एडवर्टाइजमेंट से जो है फ़ौरन फ़ौरन रिस्पॉन्स के सम टाइम ये होता है कि मार्केट जो है वो जो है एकदम चेंज हुई और ये वो ट्रेंड आ गया, जो ट्रेंड जो है एक्चुअली आपकी प्रोडक्ट के लिए जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था, वो सूटेबल नहीं था, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, कोई ऐसा इमीडिएट स्ट्रेटजीज क्रिएट कर रहे हो, उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि आपको फ़ौरन इमीडिएट रिस्पॉन्स मिले। तो आप जो है एक अपने बजट के ऊपर जो है आपने क्या करा, अपने बजट को सैक्रिफाइस कर दिया और इमीडिएट रिस्पॉन्स लेने के लिए जो है एक नई टेक्निक जो है वो मार्केट में, एक नई टेक्निक से ज़रिए आप मार्केट में एंटर हुए और आपने अपनी प्रोडक्ट को जो है वो एडवर्टाइज कर दिया। दैट इज़ कॉल्ड द इमीडिएट रिस्पॉन्स। एग्जीक्यूटिव डिसीजन, अब जो पर्सन डिसीजन लेने वाला है, जो डिसीजन मेकर है, वो इटसेल्फ को डिसीजन ले कि उसने कितना एलोकेट करना है, रैंडम एक अमाउंट जो है वो क्या करे वहाँ पर एलोकेट कर दे। That is called the executive decision. Okay. परसेंटेज ऑफ सेल्स या प्रॉफिट कॉमन है, यूनिट ऑफ सेल्स भी कॉमन है। एग्जीक्यूटिव डिसीजन पाकिस्तान के सिनेरियो में रहते हुए बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि हमारे यहाँ एक्चुअली जो सोल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है, सेटीआई सिस्टम मौजूद है, वहाँ पर नॉर्मली जो है एग्जीक्यूटिव डिसीजन ही लिए जाते हैं। और इमीडिएट रिस्पॉन्सेज पाकिस्तान की मार्केट में इतनी ज़्यादा जो है एसएमईज़ के लिए जो है वो टफ टाइम नहीं होता, या फिर जो है पाकिस्तान की मार्केट एमएससी को मोस्ट प्रोबेबली वैसे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही होती है।
तो इमीडिएट रिस्पॉन्स लेने की जो एक चांस होता है वो पाकिस्तानी एसएमईज़ को जो है वो ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ रहा होता कि वो इमीडिएट रिस्पॉन्सेज़ लें। क्योंकि देखिए इमीडिएट रिस्पॉन्सेज़ जो है वो आपके पास आपके बिज़नेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बेस कर रहे होते हैं। जैसे कि इमीडिएट रिस्पॉन्सेज़ आप मोस्ट प्रोबेबली जो है वो टेक्नोलॉजिकल जितने भी गुड्स एंड आइटम्स में अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो वहाँ पर आपको इस तरह के रिस्पॉन्सेज़ होते हैं। लेकिन पाकिस्तान नॉर्मली जो है वो कभी भी इस तरह के आइटम प्रोड्यूस तो नहीं करता, अलबत्ता जो है वो अपनी सर्विसेज़ ज़रूर जो है बाय कर रहा होता है, वो सर्विसेज़ ज़रूर बाय कर रहा होता है। नाउ जी, मीडिया सिलेक्शन, कौन-सा सोर्सेज़ ऑफ मीडिया आपने इस्तेमाल करना है, ओके। अच्छा जी, इसमें तो मुझे डिटेल में जाने की इसलिए भी ज़रूरत नहीं है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। ब आप लोग अपने बचपन से देखते हुए आ रहे होंगे इन चीज़ों को कि इट मे बी अ न्यूज़पेपर, इट मे बी अ साइन एज, अ, डायरेक्ट मेल, सर्कुलर्स, हैंडबिल, येलो पेजेस, रेडियो, टेलीविज़न, ऑनलाइन, किस तरीके से जो है वो आप क्या करें अपने मीडिया को सेलेक्ट करें। अच्छा, येलो पेजेस का जो शुमार है पाकिस्तान में आप लोगों ने पाकिस्तान में येलो पेजेस बाय द वे यूज़ नहीं हो रहे होते, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो दूसरी प्लेसेस होते हैं, दूसरी कंट्रीज़ हैं, वो येलो पेजेस को जो है एक मीडिया सिलेक्शन जो है, वो मान रही होती। हमारे यहाँ जो है अब तक मेरे ख़्याल से तो पीटीसीएल ने अब येलो पेजेस बनाने भी बंद कर दिए होंगे। पूरी फ़ोन डायरेक्टरी जो है उसने मेरे ख़्याल से मैनेज करना, मेंटेन करना जो है वो बंद कर दी। लास्ट टाइम मेरी नज़रों से जो है वो 2017 की लास्ट डायरेक्टरी गुज़री थी। हो सकता है कि फिर उन्होंने कुछ किया हो इसके ऊपर काम। लेकिन येलो पेजेस जो है वो पाकिस्तान में इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। पाकिस्तान में मोस्ट प्रोबेबली जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ होती है वो टेलीविज़न सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है यहाँ पर, या फिर जो है हम हैंडबिल्स की तरफ साइन बोर्ड या हैंडबिल्स की तरफ जो वो ज़्यादा जाते हैं। न्यूज़पेपर भी समहाउ इस्तेमाल हो रहा होता है, लेकिन न्यूज़पेपर को पाकिस्तान का जो बिज़नेस पर्सनल है वो इसको जो है एक्सपेंसिव जो है कंसीडर कर रहा होता है, क्योंकि इसका जो रिस्पॉन्स या फीडबैक आता है एडवर्टाइजमेंट का वो थोड़ा लेट होता है। नाउ जी, व्हाई पीपल डोंट शॉप ऑनलाइन। चलिए जी, ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस में लोग क्यों नहीं शॉप करना पसंद करते। मतलब अ, मुझे जो है पर्सनली ये लगता है कि ऑनलाइन बिजनेस पाकिस्तान में सिर्फ एक वजह से जो है वो इन नहीं है या बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, और वो है कौन करने वाली आदत के। मतलब यानी कि यहाँ पर जो है रिसीव करना आसान है। यहाँ पर हमारे यहाँ साइबर सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, या हमने जो है सिक्योरिटी के ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं किया हुआ, दैट्स वाई जो है ऑनलाइन शॉपिंग करना और शॉपिंग की तरफ जाना जो है वो लोगों के लिए प्रॉब्लम होता है। वॉट एवर कि हमारे पास तकरीबन हमारी 25 से 30% पॉपुलेशन जो है वो यूज़ टू है इंटरनेट का बहुत ज़्यादा करना, लेकिन फिर भी जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग को नहीं कर रही होती। जबकि अगर आप आउट ऑफ द कंट्री बात करें, पाकिस्तान के अलावा बाहर निकल के आप बात करें, आप जैसे दुबई की बात करें, तो वहाँ पर आप जो है वॉक एंड शॉप वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इन है कि आप जो है अपने किसी ऑफ़िस मतलब आप अपने ऑफ़िस की तरफ जा रहे हैं तो आप अपने रास्ते से जो है ना ग्रोसरी या कोई भी चीज़ जो है वो ऑर्डर करते हुए जाएँगे, और एट द एंड ऑफ द टाइम जब आप शाम में आप घर पहुँचेंगे तो वो चीज़ें जो है वो वहाँ पर आपको उनको टाइम सेट करते हुए देते हुए जाएँगे। तो वहाँ पर जो है वो आपके घर पर जो है वो आपके डेस्टिनेशंस पे जो है वो मौजूद होती है। मतलब वॉक एंड शॉप का ये पूरा कॉन्सेप्ट मौजूद है आपके पास अदर कंट्रीज़ में, लेकिन पाकिस्तान में ये जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे जो है बहुत सारे सिक्योरिटी पर्पस मौजूद हैं। क्योंकि अगर आप बात करें, आप किसी को अपने घर का एड्रेस देते हुए चले जाएँ और आप कहें कि आप इस टाइम तक आ जाएँ, तो मे बी पॉसिबल है कि शाम तक पहुँचते-पहुँचते आपका घर जो है वो मिले। एनीवेज, दैट इज द पॉइंट कि ये मौजूद है हमारे पास हमारी सोसाइटी के अंदर। एनीवेज, व्हाई पीपल डू नॉट शॉप ऑनलाइन, सिक्योर नहीं है, हमें पता है। जियो पैराडाइज प्राइवेसी जो है वहाँ हमारे पास प्राइवेसी इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, हमें जो है बहुत सारी जिस दूसरा बड़ा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है कि आपको बहुत सारे जो है स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहले आप ये करें, आप पहले जो है यहाँ पर ये स्टेप फुलफिल करें, फिर ये करें। तकरीबन आप किसी भी अभी जैसे कि एक गो टू शॉपिंग को जो है मैंने ऑब्जर्व किया, तो तकरीबन उनके 8 स्टेप थे। देन फिर उसके बाद जाके पता चला था कि अब आपका जो है वो आपका कार्ट तैयार हो चुका है और आप जो है अब जो है एंजॉय कर सकते हैं इसको एट होम। लेकिन क्या 8 स्टेप्स, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतना टाइम जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर जो है वो
वेस्ट करेगा। सिलेक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं, नॉट इनफ सिलेक्शंस मौजूद होती हैं, आप टच नहीं कर सकते, ट्राई नहीं कर सकते। और ह्यूमन माइंड की जो है स्टैटिस्टिक है, एक फिनोमेना है कि जब तक वो टच नहीं करेगा, वो जो है रिलैक्स नहीं हो सकता, वो सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। गारंटी की सेटिस्फेक्शन नहीं है, रिटर्न हैज़ल्स मौजूद हैं बहुत ज़्यादा, अराइव ऑन टाइम, अराइव, और जो चीज़ आप मंगवा रहे हो वो अपने असल नौयत की जो है वो मिल भी नहीं रही, हार्ड टू फाइंड थिंग्स, इंजॉय शॉपिंग आउट ऑफ होम्स। और हमारे यहाँ जो है मार्केट में ख्वार होने को या मार्केट में घूमने को ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि शॉपिंग भी हमारे यहाँ एक इवेंट है, वो ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ शॉपिंग जो है वो एक इवेंट है कि अगर कुछ नहीं है करने के लिए तो चलें जी शॉपिंग पर चलते हैं। तो ये जो है इंजॉय शॉपिंग आउट ऑफ हाउस होने वाला जो है एक कॉन्सेप्ट है, वो भी ईस्टर्न कल्चर में जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है कि वो वहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, हम शॉपिंग को ऐसा एंटरटेनमेंट ख़्याल करते हैं, ज़रूरत ख़्याल नहीं करते। हमारे पास टाइम बर्बाद करने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए बहुत सारा टाइम हमारे पास मौजूद है ऑलरेडी। ओके जी, नेसेसरी वेबसाइट्स फीचर्स, वेबसाइट के फीचर्स जो हैं वो क्या होते हैं, ये आपके पास यहाँ पर मौजूद है। देन फिर इन्फॉर्मेशंस का मतलब आपके आपके टीवी कमर्शियल्स में वो किस तरीके से आपको हेल्प आउट करते हैं अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड द इन्फॉर्मेशंस। देन मीडिया सिलेक्शन जो है आप इस तरह भी करते हैं कि आप जिस टारगेट मार्केट की तरफ आप जा रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल दैट आप जो है बाइक के ऑयल की बात कर रहे हैं, और बाइक के ऑयल जो है वो एक्चुअली कौन उसका जो है सबसे बड़ा कंज्यूमर है, और वो जो लोग बाय करते हैं, मोबाइल ऑयल आप बाय कर रहे हो बाइक के लिए, तो वो कौन से लोग हैं जो इसको बाय करेंगे, क्या वो टारगेट मार्केट जो है वो किस किस चैनल के थ्रू आप उसको जो है टारगेट कर सकते हैं। फिर आप वहाँ पर जो है टारगेट मार्केट में अपनी कॉस्ट को देखोगे कि ये रिलेटिव कॉस्ट है या आपके पास आपकी एब्सोल्यूट कॉस्ट है। फिर आप ये बात करते हो कि मीडिया सिलेक्शन में कि इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो कब कब आपके लिए पॉसिबल है। तो मीडिया सिलेक्शन जो है वो एक्चुअली क्या कर रहा है आपके पास, आप देख रहा है कि किस टाइम जो है किस तरह से जो है आप अपने मीडिया सिलेक्शन को जो है वो चूज़ कर रहे होंगे, आपकी टारगेट मार्केट कौन-सी है, आपकी कॉस्ट कौन-सी है, और इसकी जो है आप जहाँ पर आप अपनी निच मार्केट को जो है आप देखना चाहते हो, तो निच मार्केट को आप कैप्चर करना चाहते हो, क्या निच मार्केट में वो मीडिया सिलेक्शन जो आपने मीडिया सेलेक्ट किया है वो अवेलेबल है भी या नहीं अवेलेबल है। मीन दैट के आप जो है रूरल सिंध में जाकर जो है आप अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट करना चाह रहे हो। फिर आप वहाँ पर जो है टीवी की फैसिलिटेशंस बहुत ज़्यादा मौजूद होंगी, या इंटरनेट की फैसिलिटेशंस मौजूद होंगी, जिससे आप अपना जो है प्रोडक्ट कैप्चर कर लो। तो इट इज़ इम्पॉसिबल समहाउ, इतना ज़्यादा आप जो है वहाँ पर अपने प्रोडक्ट के लिए अपनी मार्केट को कैप्चर नहीं कर सकते हैं। अभी लास्ट टाइम ही जो है वहाँ पर जब मेरा विज़िट हुआ था, तो मतलब टिंडोला यार के साइट पर जस्ट नूडल्स की बात हो रही थी कि नूडल्स जो हैं वो आप कौन-सा बाय करेंगे, तो पता चला था कि इवन ये जो वो नूडल्स भी ले रहे हैं, तो वो नूडल्स भी जो है वो किसी एप्रोप्रिएट कंपनी का नहीं है। इसका रीज़न क्या है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो नूडल्स तो खाना चाह रही है, लेकिन वहाँ पर उनकी नूडल्स की प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल ही नहीं है। तो वहाँ से जो लोग कराची आते हैं और कराची से वापस जा रहे होते हैं, वो सम टाइम क्या कर रहे हैं, उसको जो है यहाँ से बाय करके वहाँ पे लेके जा रहे हैं। अब क्वेश्चन इज़ दैट, क्या जो नूडल्स बनाने वाली कंपनीज़ हैं, क्या वो अपने इंटरमीडिएट्स को वहाँ पर मैनेज नहीं कर अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करने के लिए के ये पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जगहों पर छोटी-छोटी प्लेसेस पर जो गैप मौजूद हैं, और उन गैप को जो है इंक्रीज़ के जो है अपनी प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को जो है वो वहाँ पर मार्केट शेयर को इंगेज कर सकते हैं। अदर एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स कौन सी है, मर्चेंडाइजिंग पॉइंट ऑफ परचेज पे जो है आप क्या करें, अपनी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, सेल्स प्रमोशन टू द कस्टमर थ्रू द ट्रेड थ्रू द सेल्स फोर्सेज आप कर सकते हैं। एंड देन पब्लिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है आपकी पब्लिसिटी, बाय द वे एंड इट में भी पॉजिटिव एंड इट में भी नेगेटिव। आपकी प्रोडक्ट के लिए दोनों तरीके से जो है वो वहाँ पर मैनेज इन्फॉर्मेशन आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, और वो कितने ज़्यादा जो है
वहाँ पर मैटर करते हैं आपके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। वैल्यू ऑफ प्रिंट की आप बात कर रहे हैं वहाँ पर, जो आप प्रिंट आउट जो आप प्रिंट करवा रहे हो उसकी लैंग्वेज कैसी है, और इवन के उसमें आप किस टाइप का मैसेज जो है वो आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के हवाले से। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंक कि आप किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को जो है वो अ, अपनी प्रोडक्ट को जो है वो किस तरीके से जो है मार्केट कर रहे होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द वैल्यूज़ ऑफ प्रिंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ एंड अफोर्डेबिलिटी के कितने ज़्यादा जो है आप जो है यूज़ कर रहे हैं, उस मीडिया को आप यूज़ कर रहे हैं। टारगेट मार्केट मीडिया और टारगेट मार्केट मीडिया जो है वहाँ पर चूज़ करते टाइम भी जो है आप अपनी इथनिक डिफरेंसेस को का जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। ग्लोबल मार्केटिंग, और शायद आप लोगों को याद हो तो मैंने ये ग्लोबल मार्केटिंग का टॉपिक जो है वो आप लोगों की तरफ पूरा फ्लो कर दिया था। वो इसलिए फ्लो किया था कि आप लोगों ने लोकल मार्केटिंग देखी है, इवन के आपने जो है इंटर सिटीज़ और इंटर कंट्री की मार्केटिंग भी आपने संभाला, क्योंकि आजकल माशाल्लाह से आप लोग बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहे हैं इस कोविड में बैठ के, तो इंटर कंट्रीज़ की भी जो है आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट वहाँ पर जो है आपकी नज़र से गुजरी होगी। तो ग्लोबल मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो आप लोग को खुद रियलाइज़ हो गई होगी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है ईबे इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे मतलब अली एक्सप्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमेज़न इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहे हैं। तो इट मीन्स ऑफ दैट कि ये प्रोडक्ट्स ऑलरेडी जो है ये आउटलेट्स भी ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, और उनके कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट के, अगर आप सिर्फ एक एग्जांपल लें तो वो भी पाकिस्तान में जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन हाउ you are use how to going to use this kind of things because of that the marketing। आपको पता है इसके रिटेलर कहाँ मौजूद है, आपको पता है इसके सेलर्स कहाँ मौजूद हैं, आप इंटरनेशनली क्या करते हैं अपने ऑर्डर्स को बुक करवा रहे होते हैं, और फाइनली वो जो है आपके पास क्या होते हैं यहाँ पर पहुँच जाते हैं। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान की कॉस्मेटिक्स मार्केट की बात करें तो पाकिस्तान की जो कॉस्मेटिक्स मार्केट्स की जो प्रोडक्ट होती हैं वो तकरीबन 65% जो है वो इंडियन कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही होती है। आपका सामान वहाँ से बन के जो है पाकिस्तान में आ रहा होता है। और जो है अगर आपको कुछ और अदर देन चाहिए होता है तो आप क्या कर रहे होते हैं, ग्लोबली मार्केटिंग के थ्रू जो है उसकी सेलिंग एंड बाइंग कर रहे होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द इम्पोर्ट एंड सेल्स प्रोडक्शन, इम्पोर्ट एंड सेल प्रोडक्ट एंड सेल्स इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स। ये तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो आपके पास क्या हैं, ग्लोबल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट हैं। ओके, ग्लोबल मार्केटिंग एक्सपोर्टिंग मिथ्स जो हैं कुछ जो है मिथ्स हैं जो ये कि यहाँ पर वर्कआउट कर रहे होते हैं कि आपके पास जो है सिर्फ लार्ज फर्म्स जो होती हैं वो एक्सपोर्ट कर सकती हैं, जो लार्ज फॉर्म मौजूद हैं यहाँ के ऊपर। यहाँ पर जो इंटरनेशनली वर्कआउट कर रही हैं जिनकी अपने जो आउटलेट हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में मौजूद हैं, मैक्सिमम कंट्रीज़ में मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये जो मिथ है ये है कि जो है वो आपके पास फिजिबल नहीं है, क्योंकि जब जब आप किसी छोटी आउटलेट से भी मंगवा रहे होते हैं या कोई ऐसा बिजनेस जो है वो वहाँ पर लार्ज फर्म बेसिस पर नहीं है, स्मॉल फर्म डिफरेंशिएशन मौजूद है, उन्होंने खुद को अच्छी तरीके से मार्केट किया हुआ है, एडवर्टाइज किया हुआ है। तो आप उनसे जो है वो पाते हैं। अनसर्टेनिटी पेमेंट की जो एक यहाँ पर जो है मिथ मौजूद होता है कि पेमेंट पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी आपके पास जो है जस्ट एक मिथ ही है। लिमिटेड सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, फॉरेन मार्केट नोट बाय अमेरिकन्स, ये जस्ट ओनली अमेरिकन थाउट्स हैं, अमेरिकन नेचर्स है ये एक्चुअली। स्टार्टअप कॉस्ट इज़ हाई, कि ग्लोबल मार्केटिंग में इसका जो स्टार्टअप कॉस्ट होता है वो हाई होता है। देन ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस, दैट इज़ द इंटरनेशनल थाउट्स। इंटरनेशनली जो है वो देख रहे होते हैं कि ग्लोबल मार्केटिंग में आपके पास अपॉर्चुनिटीज कौन सी मिलेंगी और चैलेंजेस। डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी कॉमन थिंग, वेरी जनरलाइजिंग थिंग, कि जब आप ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं, ग्लोबल मार्केटिंग की आप बात कर रहे हैं, आपको एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा मिल रही है और आपको डिफरेंट कल्चर में जो है आपकी प्रोडक्ट जो है डाइवर्सिफाइड होने का जो है आपको चांसेस मिल रहे हैं। आपका इफेक्टिव यूज़ आपको जो है आपकी प्रोडक्ट का मिल रहा है। लोअर लेबर कॉस्ट जो है आप वहाँ से आप अपने जो समटाइम जब आप अपने बिजनेस को जो है अ, अगर अमेरिका से निकल के पाकिस्तान में लेकर आएँ तो वहाँ पर आपके पास जो आपका लेबर कॉस्ट होता है वो अल्टीमेटली जो है वो कट ऑफ होना शुरू हो जाता है। आपका लेबर कॉस्ट मिल रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज़ आप इस्तेमाल कर सकते हो उस कंट्री के, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट आपके पास बढ़ जाता है, टैक्स एडवांटेजेस समहाउ मिल रहे होते हैं।
टैक्स एडवांटेजेस क्योंकि हो सकता है कि आपकी कंट्री के अंदर आपके पास टैक्सेस ज़्यादा इम्पोज हों, लेकिन जब आप किसी जो है अपनी गेस्ट कंट्री में जा रहे हैं, होस्ट कंट्री से निकल के आप अपनी गेस्ट कंट्री की तरफ जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पर जो है टैक्स एडवांटेजेस जो है, टैक्स जो है वो थोड़ी सा एविजन मिल जाए आपको, या वो उन्होंने कम टैक्सेस जो है वो अप्लाई किए हों, तो वहाँ पर आपको टैक्स एडवांटेज मिल रहा है। डिमांड फॉर यूएस प्रोडक्ट्स जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ज़्यादा हैं, तो उनको यहाँ पर जो है ये इनका सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा जी, रिसीविंग कंट्री बेनिफिट्स, जो कंट्री जिस कंट्री में आप होस्ट हैं, तो उस कंट्री के भी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होंगे जो कि आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। तो ये है आपके पास ग्लोबल मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। इसके प्रॉब्लम्स भी हैं कि समटाइम जो है उस कंट्री में आपका बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर है, पॉपुलैरिटी नहीं, तो आपके पास अर्निंग नेम पॉलिटिकल सिस्टम उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कि पॉलिटिकल सिस्टम में अगर आप बात करें, तो अभी जो हवावी के साथ फ्रॉम 2019 से हो रहा है, फरवरी 2019 से जो है हवावी जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रही है अमेरिका के अंदर, ना यूरोप के अंदर। तो क्या है, ये टोटली जो है पॉलिटिकल थाउट्स है। तो चेंजिंग पॉलिटिकल सिस्टम्स जो हैं वो यहाँ पर हो सकता है एक्सचेंज रेट मैटर कर सकते हैं, कि डॉलर जो है वो पाकिस्तान में 165 एंड 164 है, लेकिन वही डॉलर जो है इंडिया में किसी और रेट के साथ मौजूद है, वही डॉलर जो है जापान में किसी और रेट के साथ मौजूद है। एक्सचेंज रेट्स जो है इट्स वन ऑफ द अनदर प्रॉब्लम जो अमूमन जो है एम एन सीज, मल्टी कंपनीज, या फिर जो इंटरनेशनल बिजनेस पर्सनस हैं वो फेस कर रहे होते हैं। डिफिकल्टी इन द गेटिंग अर्निंग, स्टेट सब्सिडाइजेशन, कंपटीशन, अंडरस्टूड सी चीज़ है कि ऑलरेडी उस कंट्री में जो है पहले से लोग मौजूद हैं, जो वो बिज़नेस जो आप लेके जा रहे हो वहाँ पे कर रहे हैं, तो कंपटीशन जो है वो वहाँ पर मिल रहा है आपको। अनस्किल्ड लेबर भी समहाउ मिल रहा होता है आपको। ज़ाहिर सी बात है कि आप जिन एसओपीज़ पे काम करने के लिए, जिन जिन स्टैंडर्डाइजेशंस के ऊपर काम करने के लिए जो है काम करवा रहे होते हैं, या जो आपने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं कि आप अपने लोगों से, या आप जो लेबर हायर करेंगे उनके अंदर ये स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, उनके अंदर ये जॉब डिस्क्रिप्शंस होनी चाहिए। तो वो जॉब डिस्क्रिप्शंस एंड स्पेसिफिकेशंस जो है, जब आप किसी होस्ट कंट्री में जा रहे हैं, वो गेस्ट कंट्री में आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर उनके लेबर के अंदर मौजूद, दैट इज़ द टेक्निकली द प्रॉब्लम फॉर दैट बिजनेस। बिकॉज ऑफ दैट लैंग्वेज प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाता है, कल्चर डिफरेंसेस आ जाते हैं, कॉपीराइट पेटेंट वायलेशंस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि कल या परसों अभी किसी स्टूडेंट ने अपनी क्लास से प्लेजरिज्म का टॉपिक उठाया था अबाउट द असाइनमेंट, तो वहाँ पे जो है कॉपीराइट एंड पेटेंट वायलेशंस जो है वो ऑब्वियसली हो सकती हैं। एक्सपोर्ट करें आप अपने गुड को या ना करें, आपकी प्रोडक्ट सुटेबल है, सही सेटिस्फाई द फॉरेन डोमेस्टिक डिमांड आप किस तरीके से जो है वहाँ पर मीट कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस एंड टर्म्स जो है ना आप वहाँ पर मैनेज कर रहे होते हो, कि आपके पास आप जिस प्राइस को लेकर जा रहे हो, आपका कॉम्पिटिटर क्या ऑलरेडी उस प्राइस के साथ मौजूद है, या उससे कम प्राइस के साथ मौजूद है। आप वहाँ पे ये चीज़ जो है चेक करोगे, पर आप ये बात भी चेक करोगे, डिवोटेड टाइम एंड स्किल्स जो है इट्स द वन अनदर टॉपिक। एक्सपोर्टिंग असिस्टेंट की बात करें, असिस्टेंस आप कहाँ से आपको मदद मिल सकती है, तो आपके पास जैसे कि अगर आप पाकिस्तान में हैं, आपका पूरा एक्सपोर्ट ब्यूरो मौजूद है, तो एक्सपोर्ट ब्यूरो जो है वो आपको क्या कर रहा होता है, हेल्प आउट प्रोवाइड कर रहा होता है। और दूसरे जो डिपार्टमेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो आपको क्या करता है, असिस्टेंट डिवाइड प्रोवाइड कर रहा है, आपको ईड दे रहा है एक्चुअली। नाउ अगर हम एडवर्टाइजिंग की बात करें, तो वहाँ पर एडवर्टाइजिंग के सोर्सेज और एडवर्टाइजिंग के जो है आपके पास के विच कंसिडरेशंस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एडवर्टाइजिंग, ये आपके पास ज़रूरी है। ये दो टॉपिक जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एसएमई को लेकर। नाउ अब आप जब बात करें, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन को जो है हम क्विकली वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट स्टूडेंट यू नो वेरी वेल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन involves the effective movement of a product from the production line to the final consumer। आपको अपने प्रोडक्शन लाइन से, मतलब पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से आपको क्या करना है, पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक अपनी प्रोडक्ट को ट्रैवल करवाना है, और किस चैनल के थ्रू आप उसको ट्रैवल करवा रहे हो, दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन। रिकॉल करवाओ मैं आप लोगों को, तो आपके पास दो चैनल्स होते हैं, एक होता है आपके पास डायरेक्ट चैनल, और दूसरा होता है आपके पास इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल का मतलब सिंपल, आप अपने मैन्युफैक्चरर से फेस टू फेस कंसर्न कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट चैनल। जैसे कि आपको जो है आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर के पास जो है वो आपके पास क्या है, आपका डायरेक्ट चैनल मौजूद है। ओके, तो यहाँ पर आप अपने प्रोड्यूसर से जो है खुद कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो चैनल आपके पास डायरेक्ट चैनल कहला रहा है। इनडायरेक्ट चैनल आपके पास आपके इंटरमीडिएट्स मौजूद होते हैं। इनडायरेक्ट में आपका इंटरमीडिएट कौन कौन हो सकता है, मैन्युफैक्चरर,
होलसेलर, रिटेलर एंड देन आप खुद कंज्यूमर। समटाइम ये होता है मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड देन कंज्यूमर। तो ये आपके पास जो है चैनल्स मौजूद हैं डायरेक्ट चैनल और इनडायरेक्ट चैनल के नाम से कि आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो किस तरीके से मूव करवा रहे हो। तो ना जो आपका एक क्वेश्चन है जो कि बेस करता है आपके पास आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से कि हाउ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एसएमई पर्सोनल, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपके एसएमई के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट है भी या नहीं है, क्योंकि हमें ये बात पता है कि एसएमई जो है अपने निश मार्केट यूज़ कर रहे हैं। तो निश मार्केट में जो है एसएमई की जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी होती है। ये क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों की तरफ फ्लो करके जा रही हूँ। स्टूडेंट मूव करती हूँ मैं नेक्स्ट। डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ में आप क्या कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं, अपने ऑर्डर का प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं और अपने ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स दैट स्टोर करना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में जो है आप अगर एक होल सेलर हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है आपके पास बल्क क्वांटिटी जो है वो स्टोर होनी चाहिए। दैन फिर जो है कितना ऑर्डर आपके पास उस क्वांटिटी से कितनी जो है सप्लाई चेन आपके पास मैनेज है कि आप ऑर्डर जो है वो कितनी देर में प्रोसेस कर लेते हैं। और जो है दैन फिर ट्रांसपोर्टेशन स्पीड कितनी ज़्यादा है, कितनी देर में आप अपनी जो प्रोडक्ट है वो अपना जो एंड यूज़र है उस तक पहुँचा सकते हैं। जैसे कि स्पीड, फ्रीक्वेंसी, डिपेंडेबिलिटी, पॉइंट्स ऑफ कैपेबिलिटी एंड कॉस्ट, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो आपके पास क्या है, आपकी प्रोडक्शन का और ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है। कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आप किन कंसिडरेशन को आप चेक कर रहे हो। जियोग्राफिकल मार्केट एंड कंज्यूमर टाइप्स, क्या आपके पास जो है आपको वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आपके पास आपकी जो है निश मार्केट मौजूद है या जिस सिटी में कर रहे हो तो जियोग्राफिकली मार्केट। और फिर आपके पास आपकी कंज्यूमर की टाइप कौन सी, इंटेंसिव सिलेक्टेड एक्सक्लूसिव आउटलेट्स। इंटेंसिव सिलेक्टेड एक्सक्लूसिव आउटलेट आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो है ये कहाँ पर जाके जो है ना आपको क्या करना है, अपनी को पॉसिबिलिटी बनाने। प्रोड्यूसर्स मार्केटिंग एफर्ट्स जो है वो आपके पास आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक अदर पार्ट होता है कि प्रोड्यूसर्स की जो मार्केटिंग एफर्ट है वो मार्केटिंग एफर्ट्स जो हैं वो जो है कंसीडर की जाती है एट द टाइम ऑफ मार्केटिंग। देन फिर फीडबैक की बात करते हैं और फिर इंसेंटिव ऑफ फॉर रीसर्च के जो है आप क्या रीसेलर को क्या कोई फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो इंसेंटिव्स ऑफ द रीसेलर्स की जो है आप बात कर रहे होते हैं। नाउ यहाँ पर ये आपके पास जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मौजूद है कंज्यूमर गुड्स का कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है। जैसे कि प्रोड्यूसर डायरेक्ट कंज्यूमर से डिपेंडेंट होता है, प्रोड्यूसर्स जो है रिटेलर दैन फिर कंज्यूमर से जो है वो लिंक करेगा। वही प्रोड्यूसर जो है पहले होलसेलर से लिंक कर रहा है, दैन फिर रिटेलर से जो है वो प्रोडक्ट आ रही है और फिर उसके बाद फाइनल कंज्यूमर तक आ रही है। फिर यही प्रोड्यूसर्स जो है वो अपने बुकर एंड एजेंट को जो है वहाँ पर फैसिलिटेट कर रहा है और दैन फिर उसके बाद वो होलसेलर के पास आ रही है वो प्रोडक्ट, फिर उसके बाद वो रिटेलर के पास आ रही है एंड फाइनली जो है वो कंज्यूमर के पास जा रही होती है। दैट इज़ कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के। यहाँ पर तकरीबन 4 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो है वो आपको दिखाए गए हैं और हर चैनल जो है जैसे कि ये आपके पास कंज्यूमर गुड्स का चैनल था और ये आपके पास इंडस्ट्रियल गुड्स का चैनल है कि इंडस्ट्रियल गुड्स जो है वो किस तरीके से आपके पास ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं। इंटरमीडिएट्स में कौन कौन मौजूद है आपके पास, आपका ब्रोकर मौजूद है, आपका एजेंट मौजूद है, आपका होलसेलर, रिटेलर्स मौजूद है कि ये चार जो है इंटरमीडिएट्स जो हैं वो आपके पास आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर जो है वो काम कर रहे होते हैं। ब्रोकर्स, एजेंट्स, होलसेलर एंड रिटेलर्स। देन रिटेलिंग ट्रेंड्स में जब आप बात करते हैं तो रिटेलिंग ट्रेंड्स में जो है ऑफ प्राइस के ऊपर बात करते हैं, आप सेल्फ सर्विस फास्ट फूड के ऊपर बात करते हैं, एटीएम्स के ऊपर बात करते हैं, इंटरनेट के ऊपर बात करते हैं कि रिटेलिंग करने के लिए जो है आप अपने ई बिजनेस को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मूव कर रहे हैं। तो रिटेलिंग ट्रेंड्स जो है इज दिस स्टेप्स इन द सेल्स प्रोसेस जो है प्रिपरेशन है आपके पास, प्रॉस्पेक्टिंग है, मार्केटिंग, इनिशियल कॉन्टैक्ट जो है आप काम कर रहे हैं। मतलब जब आप सेल्स प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं तो आप पहले खुद को जो है डिटरमाइन कर रहे हैं कि आपने कितनी जो है कितना जो है आपने प्रोड्यूस करना है। दैन फिर उसके बाद जो है मार्केट के इनिशियल कॉन्टैक्ट्स को जो है आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आप अपने प्रोडक्ट को जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, ऑब्जेक्शंस को जो है हैंडल कर रहे हैं, वहाँ पर अपनी क्लोजिंग अपनी सेल्स की क्लोजिंग को जो है देख रहे हैं वहाँ पर कि आपके पास जो है
सेल्स कहाँ कितना क्लोज़ पे है आपके पास सेल्स, जो आपने टारगेट मैनेज किए थे, क्या वो टारगेट्स जो हैं आप उसको उसके अकॉर्डिंगली आपका सेल्स क्लोज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है? सजेशन ऑफ सेलिंग्स वहाँ पर आप जो है उसको कंसीडर कर रहे हैं, फाइनली जो आप अपना सेल्स का फ़ॉलो-अप ले रहे हैं। ये आपके पास क्या है स्टेप्स इन सेल्स प्रोसेस की बात है कि आपके पास जो है ये 8 स्टेप्स मौजूद हैं जो कि क्या कर रहे हैं, आपके पास सेल्स प्रोसेस के अंदर काम कर रहे होते हैं। प्रिपरेशन, प्रोस्पेक्टिंग, मार्केटिंग, इनिशियल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को प्रेज़ेंट कर रहे हो। फिर अगर उस प्रोडक्ट के हवाले से किसी तरह टाइप का भी ऑब्जेक्शन आ रहा है, तो आप उसको ऑब्जेक्शन कर रहे हो। फिर क्लोजिंग सेल्स पे बात कर रहे हो, सजेशन ऑफ सेलिंग से बात कर रहे हो और सेल्स फ़ॉलो-अप पर आप बात कर रहे हो। Now the most important thing about the sales personnel कि बीइंग अ सेल्स पर्सोनल आपको जो है कितना क्रिएटिव माइंडेड होना चाहिए या एक सेल्स पर्सोनल को अंदर कौन-कौन से एट्रिब्यूट्स होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं जजमेंट के ऊपर कि एक सेल्स पर्सन जो है उसका जो जजमेंटल लेवल है, जो उसकी मेंटल स्ट्रेंथ है, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसको अपने जो उसका सेकंड पर्सन है उसके बात करने के आइडिया से जो है पता होना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि वो आपकी प्रोडक्ट लेना चाह रहा है या आपकी वो प्रोडक्ट लेना नहीं चाह रहा है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपके पास इसमें आ रही हैं, जजमेंट पे आ रही हैं। देन फिर जो है उसको एक्सपर्ट होना चाहिए डिफरेंट टेक्निक्स के अंदर, कि वो एक्सपर्ट हो अपने पास जो है उसको डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं उसको मालूम होनी चाहिए। और फिर पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ अ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करोगे तो अंडरस्टूड सी चीज़ें पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती हैं, जो सामने वाले पर्सन के ऊपर आपका तकरीबन 30 टू 40% एफर्ट को जो है वो एफर्टलेस आपकी 30 टू 40% एफर्ट्स जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं जब आपकी पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो सामने अपने आपके कंज्यूमर के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट डाल रही होती हैं। देन फिजिकल एट्रीब्यूट से या आपके ऊपर कि बीइंग अ सेल्स पर्सोनल या बीइंग अ सेल्स पर्सन जो है वो आपको कैसा लगना चाहिए या आपको कैसा होना चाहिए। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके पास क्या हैं, आपके प्रोमोटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग के चैनल से जो है वो रिलेटेड हैं। बहुत सारी चीज़ें इस पूरे टॉपिक के अंदर और हमने डिस्कस भी बहुत सारी चीज़ें की हैं। हमने इंटरनेशनल मार्केटिंग को भी ग्लोबल मार्केटिंग के नाम से हमने उसको डिस्कस किया है। उसकी अपॉर्च्युनिटीज़ एंड चैलेंजेस को देखा है हमने। हमने वहाँ पर उसके प्रॉब्लम्स को भी जो है ना रीड आउट किया है। लेकिन अगर हम बात करें कि और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के हवाले से हमने जो है मैंने क्वेश्चन आप लोगों की तरफ थ्रो कर दिया था और वो क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को क्या करना है, उसको जो है उसको प्रेज़ेंट करना है, आपको खुद उसके जो है नोट्स प्रिपेयर करने होंगे कि वो किस तरीके से जो है क्वेश्चन प्रेज़ेंट किया जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स आज के लिए जो है हम अपने सेशन को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।